Welcome friends in my YouTube channel Easy Chemistry. Now today our topic is limitation of the Bohr model. तो Bohr model की बात करते हैं. The Bohr model of the hydrogen atom was not doubt any improvement over Rutherford's nuclear model, and it could account for the stability and line spectra of the hydrogen atom. So you can see here the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen like ions. For example देख लेते हैं He positive and Li2 positive and Be3 positive and so on. However, Bohr model was too simply to account for the following points. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं वन बाय वन पॉइंट्स क्या है. It failed to account for the fine details doublet that its two closest spaced line of the hydrogen atom spectrum observed. तो हाइड्रोजन की दोनों लाइंस के बारे में परफेक्टली बताने के लिए क्या हुआ हमारा ये इनकम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाया. तो इसके साथ साथ में देख लेते हैं by using sophisticated spectroscopic technique this mode is also unable to explain the spectrum of atom other than hydrogens. तो हाइड्रोजन से अलग के लिए बताने के लिए भी नाकाम रहा. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हीलियम एटम है विच possesses only 2 electrons. Further, Bohr theory was also unable to explain the splitting of the spectral line in the presence of the magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में बताने के लिए दूसरा बोलते हैं जीमान इफेक्ट. तो परफेक्टली एक्सप्लेनेशन अबाउट द जीमान इफेक्ट के बारे में भी नहीं बताया पाया. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी तरह से स्टेरिक इफेक्ट. तो स्पेक्ट्रल लाइन इन और एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्पेक्ट्रल लाइन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है दैट इफेक्ट इज नोन एज द स्टेरिक इफेक्ट. तो इसको भी बताने में ये नाकाम रहा, इसको भी परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इट कुड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय द केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड से कैसे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इसको भी ये कंप्लीटली अच्छी तरह से नहीं बता पाए. तो अब बात कर लेते हैं टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में देख लेते हैं ड्यूअल्स बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड पॉइंट है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ड्यूअल बिहेवियर्स ऑफ मैटर में क्या होता है यू कैन सी हियर. दिस मीन्स दैट as the photon as a movement as well as the wavelength, electron should also have the movement as well as the wavelength. तो first of all में as well as the particle behavior as well as wave behaviors. तो जब हमारा कोई मैटर दो तरह के बिहेवियर शो करता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो इस तरह के बिहेवियर को हम ड्यूअल नेचर में एक्सप्लेन करते हैं. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं the photon has movement as well as the wavelength. Electron should also have the momentum as well as the wavelength. The de Broglie from this analog save the following relation between the wavelength and momentum p. तो lambda is equal to h upon mv. h is a Planck constant, lambda is a wavelength और m is a mass और v is the velocity. You can see here m is the mass of particle which particle you are taking और p हो जाएगा m p इक्वल्स होता है mass into velocity. You know well, very well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं when m is the mass of the particle, v is the velocity and p is the momentum. नेक्स्ट बात कर लेते हैं which is based on the wave-like behavior of the electrons, just as an ordinary microscope utilizes the wave nature of the light. An electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about the 15 million times. Yes, तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम इसको जो जिसकी कैपेसिटी क्या है मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी है 15 मिलियन टाइम्स, इसके बेस पर देख लेते हैं. इट नीड टू बी नोटिस दैट अकॉर्डिंग टू ए डी ब्रॉगली ए वेरी ऑब्जेक्ट in motion has a wave characters. The wavelength associated with the ordinary object are as the shorts because of their large masses. तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं
what will be the wavelength of ball? You can see here, mass 0.1 gram, moving with the velocity of the 10 meter per second. So according to the help of the formula, lambda is equal to h upon mv. So mass of given ball is of 0.1 kilogram, then velocity 10 meter per second, or value of the Planck constant is given is 6.62 into 10 to the power minus 34 given. तो with the help of this formula लैम्डा की वैल्यू हम वेवलेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, तो इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, नॉट फॉर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हाइसेनबर्ग से. इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमेंटसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी, एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स या कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो इसकी या तो हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेज़र कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन को एक साथ मेज़र, हम दोनों चीज़ों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज हियर, यू कैन सी हियर. तो एक्स इज द पोजिशन, डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन, पी इज चेंज इन मोमेंटम, एंड इक्वल्स और इक्वल्स नहीं है h अपॉन 4 पाई. h इज अ प्लांक कांस्टेंट, you can see here, and then p is a momentum is to the mass into velocity. So with the help of this, putting the value of the p, we obtained x delta x into delta vx equals or equals greater है x and into x into delta vx. तो h अपॉन 4 पाई m. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट implications of the Heisenberg uncertainty principle, it is that it is ruled out existence of definite path or trajectory of electron and other similar particles. तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसे नोट कर लेंगे. यस. नेक्स्ट इसके साथ साथ में क्वेश्चन देख लेते हैं. यू कैन सी हियर, ए माइक्रोस्कोप यूज ए सूटेबल यस. इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर. यू कैन सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. It is therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by the statements of probability that electron has at a given position and momentum. This is happens in the quantum mechanical model of atom. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन देख ले 2.15. ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन is employed to locate an electron in an atom within a distance of the 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in a measurement of the velocity? तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यूज दी गई हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फार्मूला. तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स h अपॉन 4 पाई. तो वैल्यू पुट करेंगे तो वी इजीली वांट टू फाइंड आउट द डेल्टा वी वेलोसिटी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लांक कांस्टेंट h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम. तो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास में 4. यू कैन सी हियर पाई वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14. देन गिवन मास तेरे का 0.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 m और 9.1 इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. पोजीशन दे रखी है 0.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस. तो ईजिली इसको हम फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्स मॉडल. तो बोर्स मॉडल का फेल होने का क्या रीजन रहा, इसको देख लेते हैं. वंस कैन
Now understand the reason for the failure of the Bohr model. In the Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in a well definite circular orbital about the nucleus. तो इसमें बताया गया था कि सर्कुलर उसमें उसमें ऑर्बिट में मूवमेंट करता है. द वेव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसाइडर इन द बोर मॉडल. तो वेव करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे नहीं बताया गया, तो इसलिए ये फेल हुआ. तो इसके साथ साथ में बात करते हैं बोर्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कॉन्ट्रेडिक्ट्स हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हिंसनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो इसके साथ साथ में देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम्स. You can see here classical mechanics based on the Newton's law of motion successfully describe the motion of all macroscopic objects such as falling stone, कोई ओर से पत्थर गिरता है, orbiting planet etc. which have essential a particle like behavior as so in the previous section. पहले बताया जा चुका है. However, it fails when applied to the macroscopic object like microscopic object like electrons, molecules etc. It is mainly because of the fact that classical mechanical ignores the concept of the dual behavior of matter, especially for the subatomic particles and the uncertainty principle. तो uncertainty principle और microscopic प्रॉपर्टीज मतलब पार्टिकल्स के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं था. तो बात कर लेते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू द अकाउंट दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिक्स. तो जो ड्यूअल बिहेवियर पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स. तो इसका रीज़न ये था कि यू कैन सी हियर इससे रिलेटेड ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.